मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरु नानक देव जी की। बचपन तो मैंने बहुत श्रद्धा ते विश्वास है गुरु नानक देव जी पर। तो जदों टाइटल मिला नानक नाम जहाज है, 4 साल से मैं लाइन में थी हमारे एसोसिएशन में, एंड फाइनली आफ्टर 4 years आई गॉट अ लेटर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इम्पा कि वो टाइटल मेरी कंपनी को राइट इमेज इंटरनेशनल को मिल गया। और पाजी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं उस दिन कितनी, मुझे ऐसा लगा कि सारे जहां की खुशियां मुझे मिल गई। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। पाजी मैं शुक्रगुजार हूँ SGPC ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया। पहला कॉन्सेप्ट समझा गया सी SGPC यस यस कहानी मैंने उनको पूरा क्या क्या शूट करने वाली हूँ पहले मैंने उनको एडवांस में दिया था कि ये शूट करने वाली हूँ, और जगह भी बताई थी कि यहाँ शूट करने वाली हूँ। फिर उन्होंने मुझे परमिशन दिया। मैं राजपूत हाँ, मैनू पंजाबी नहीं आंदा सी जदों पिक्चर शुरू करी, बट हुण थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीख लीता है। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये कहानी मैंने इस फिल्म में दिखाई है कि एक माँ की तकलीफ क्या होती है जब उसके बच्चा नहीं होता, और फिर रिश्तेदार आपको उनके बच्चों के बर्थडे में बुलाते हैं लेकिन आप उनको अपने यहाँ नहीं बुला सकते क्योंकि आपके घर बच्चा नहीं है। वो चीज़ मैंने महसूस की है ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਲੇਖਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक। बाबा जी की पिक्चर लेके आए हैं इत्थों तो ठीक ही होंगे जी। अच्छा, मैं जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੌਰਨ ਬਰਾਊਟ ਅਪ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਬੌਟ ਐਂਡ ਬਰਾਊਟ ਅਪ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਭਾਜੀ मैं राजपूत हाँ,
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੂੰ ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ सीख लीता है ਹੂੰ तो ਅੱਜ भी पंजाबी हिंदी तो गल करांगे जी तो ਜਦੋਂ मैंने आज टाइटल मिला हूँ नानक नाम जहाज है मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरु नानक देव जी की हूँ बचपन तो मैंने बहुत श्रद्धा ते विश्वास है गुरु नानक देव जी पर तो ਜਦੋਂ आ टाइटल मिला नानक नाम जहाज है 4 साल से मैं लाइन में थी हमारे एसोसिएशन में 4 years आई वॉज इन द क्यू ओके for this title. I was begging that I should get this title. And finally, after 4 years, I got a letter from the organization IMPA कि वो टाइटल मेरी कंपनी को राइट इमेज इंटरनेशनल को मिल गया। और पाजी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं उस दिन कितनी मुझे ऐसा लगा कि सारे जहाँ की खुशियाँ मुझे मिल गई हैं वो टाइटल मिलने के बाद। और उसके बाद हमने बहुत सारा राइटरों से डिस्कस किया कहानी के बारे में बट कोई ऐसी कहानी नहीं मिली पाजी जो दिल को छूती हो क्योंकि ये टाइटल बहुत बड़ा है ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ बहुत ਬੈਠਾ ਹੈ बड़ा इतिहास है तो इन्ना बड़ा टाइटल है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ बढ़ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि स्टोरी सिलेक्शन ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਸਾਰਾ एक कहानी ਦੇ स्वरूप ही होना चाहिए है ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल तो पाजी कोई स्टोरी दिल को छूने वाली नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड मान सिंह जी ने बोला कि हमारी जो हमने 2-4 कहानियाँ जो हमारे जीवन में घटित हुई हैं मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी ये फिल्म काफ़ी कुछ हमारे जीवन से घटी हुई घटनाओं पे है कुछ लोगों के साथ जो हमारे जानने वाले हैं कुछ मेरे साथ घटी हैं उस घटना पे ये फिल्म आधारित है सच कहानी है क्योंकि ये फिल्म जब लोग देखने जाएंगे ना पाजी उनको लगेगा कि ये उनकी खुद की कहानी है। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत ਜਦੋਂ मेरा ब्याह होया उसके बाद हम लोग बच्चा चाह रहे थे बच्चा नहीं हो रहा था और बहुत मन्नतें ली थी बहुत कुछ किया था और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे रिश्तेदार भी आ गए कि नहीं कब तक चलेगा ये ऐसे इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ये मर भी सकती है फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे 1 साल दे दो मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास है और फिर हमें गुरु नानक देव जी पे बहुत विश्वास था और फिर हमने इनके ऊपर छोड़ दिया कि बाबा जी तेनू देना होगा तुसी दोगे नहीं देना होगा तो कोई गल नहीं अडॉप्ट कर लेवेंगे लेकिन पाजी विद इन 1 ईयर मैं बाबा जी दी मेहर नाल प्रेगनेंट हो गई ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ और पाजी ये कहानी मैंने इस फिल्म में दिखाई है ਅੱਛਾ जी मैं आपसे साझा कर रही हूँ करना नहीं चाहिए लेकिन मैं साझा कर रही हूँ ये कहानी मैंने इस फिल्म में दिखाई है कि एक माँ की तकलीफ़ क्या होती है जब उसके बच्चा नहीं होता और फिर रिश्तेदार आपको उनके बच्चों के बर्थडे में बुलाते हैं लेकिन आप उनको अपने यहाँ नहीं बुला सकते क्योंकि आपके घर बच्चा नहीं है वो चीज़ मैंने महसूस की है आई एम सॉरी जी 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 प्लीज और फिर मैंने ये महसूस किया और पाजी मैंने इस चीज़ को इस फिल्म में डाली है और ये बाबा जी की मेहर थी कि मैं माँ बनी आज मेरा बेटा 25-26 साल का है अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है तो ये बाबा जी की मेहरबानी से हुई है और फिर और भी कहानी है जो किसी के साथ सच में घटा है वो मैंने इसमें दिखाया है पाजी और जब कहानी मैं लिख रही थी तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये इतने बड़े भगवान और इतने बड़े गुरु की कहानी और गुरु के बारे में इनके चमत्कारों के बारे में ये फिल्म बनाना मतलब इतना आसान मेरे लिए नहीं था ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ
ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, नहीं फिर ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो मेरे हस्बैंड ने सिखों की एक टीम बना ली जो रिसर्च करके मेरे से गलती की गुंजाइश ना रहे, उस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान रखा। और पाजी यकीन मानो, बाबा जी जानते हैं मैं एक एक शब्द जो मैंने लिखी है ना, वो इतना सोच समझ के कि इस धर्म के लोगों को, इसके मानने वाले लोगों को दिल को कहीं भी ठेस ना लगे। मैंने यहाँ तक किया है कि मैंने अपनी पिक्चर में किसी लड़का लड़की ने हाथ नहीं पकड़ी है। इतनी साफ सुथरी और इतनी पारिवारिक मैंने फिल्म बनाई है। आज पाजी जो लोग हैं वो आज जॉइंट फैमिली, साथ में रहने वाली फैमिली को आज लोग भूलते जा रहे हैं। पहले छोटी फैमिली, माइक्रो फैमिली, अब मिनी माइक्रो फैमिली हो गई है पाजी। लेकिन परिवार के साथ रहना कितनी बड़ी बात होती है, कितना बड़ा एक आदमी लकी होता है कि उसको परिवार का साथ मिले। आज का यूथ गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाना पसंद नहीं करता है। ये भी कह देंगे ने रब नाम दी तो चीज़ ही है नहीं कोई। मैंने वो दिखाने की कोशिश की है कि यूथ जो आज का जनरेशन है वो इधर उधर जो जा रहा है उसको जाना नहीं चाहिए। परिवार के साथ रहो, परिवार के बातों को सुनो तो हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज किसी एक बंदे ने भी किसी एक नौजवान को भटका दिया ना, पूरी नस्ल खराब हो जाती है पाजी। मैंने यह फिल्म इतनी सोच समझकर, इतनी डर कर बनाई है, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाई है। और ये ध्यान में रखकर बनाई है कि इस फिल्म में मैं गलती की कोई गुंजाइश नहीं है पाजी। और फिल्म बनने के बाद मैंने कई लोगों को दिखाई और ऐसा कोई बंदा नहीं मिला कि जिसने मुझे ये ना कहा हो कि मैडम आपने इतना रिसर्च कैसे किया। मैंने कहा मेरी रिसर्च टीम थी, उन्होंने मेरा सारा हेल्प किया है। और सबसे ऊपर गुरु नानक देव जी बैठे थे जिन्होंने मुझे ये आदेश दिया। जब ये टाइटल मिली ना पाजी तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी का आदेश है कि कल्याणी ए फिल्म तू ही करेगी। प्रेशर अलग सी एक प्रेशर तो पूछो नहीं पाजी, इन्ना प्रेशर के दसा शब्द तो बयान नहीं कर सकते, इन्ना प्रेशर सी। अच्छा, इस फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ हैगे ने इस मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ, मुकेश ऋषि क्यों? पाजी जब हम कास्टिंग कर रहे थे ना तो फिल्म में कैरेक्टर का नाम है बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह के कैरेक्टर के लिए ना हमें जो एक बंदा चाहिए था जो एकदम रुबाब वाला, रॉब वाला, क्योंकि हमने बताई है कि ही इज़ फिल्दी रिच, सब कुछ है उसके पास। लेकिन बाबा जी की जब मेहर होती है ना तो भी सारी चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज़ कितना भी दौलत हो जाए आपके पास, किसी न किसी चीज़ से आप महरूम रह जाते हैं। तो मुकेश ऋषि जी का सिलेक्शन हमने इसलिए किया क्योंकि उसके पहले तक जो भी मुकेश ऋषि जी ने किया था और जो मेरी फिल्म में कैरेक्टर था बिल्कुल अलग था। और बलवंत सिंह को मैंने जो रूप, जो शेड्स, जो चेंजेस दिए हैं वो अपने आप में बहुत अलग है। अब तक मुकेश जी ने ये ऐसे रोल नहीं किए। जब मैंने उनको कहानी ऐसे करके सवाल सी कि उन्होंने कैरेक्टर कुछ डिफरेंट रहे ने हले तक, बिल्कुल डिफरेंट पाजी। जब मैंने उनको कहानी नरेट की तो मेरे हस्बैंड मान सिंह जी ने उनको कहा कि पाजी आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, ये कहानी सुन लो, अगर आपको लगे कि आपने ऐसी कहानी कोई की है तो फिल्म ना करना, और नहीं तो बाकी आगे तो आप क्या करोगे वो आप सुन लो कहानी। पाजी उन्होंने पूरी कहानी सुनी और पूरी कहानी सुनने के बाद उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने ये फिल्म करनी है। मान सिंह जी ने पूछा कि मॉनेटरली क्या होगा, बोला इस कहानी सुनने के बाद तो मेरे मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं, आप बताओ कब डेट चाहिए।
ये शब्द थे उनके। और कितने डेट चाहिए। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ सोही साहब ने भी यही गल कहा कि तुसी 150 दोस्तों मन। यस पाजी, सॉरी टू इंटरप्ट। सरदार सोही जी को मैंने कहानी में पंजाब नहीं आई थी, उस वक्त मेरी टांग टूटी थी। सरदार सोही जी को मैंने कहानी टेलीफोन पे सुनाया था पाजी, मिले नहीं सी तब तक मैं मिली नहीं थी उनको। जब मैंने कहानी उनको टेलीफोन पे सुनाई ना पाजी, उन्होंने कहा, मैंने बोला कि पाजी अब आगे आप बताओ क्या करना है। बोला इसके बाद तो सब फुल स्टॉप है, आगे तो काम करना है, बताओ डेट कब की चाहिए और कितनी चाहिए। ये शब्द थे उनके पाजी कहानी सुनने के बाद। मैं ना थोड़ा ट्रेलर देख रहा सी इस मूवी का, ਜਦੋਂ ट्रेलर देखदा ਤਾਂ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? नहीं जी पाजी, मैं शुक्रगुजार हूँ SGPC ऑर्गेनाइजेशन ना कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया और मुझे अलाउ किया कि मैं अपने कैमरे से शूट करूं, और मेरा पूरा सीक्वेंस मेरे कैमरे से शूट हुआ। वो मुझे पहले बोला था, पहला कॉन्सेप्ट समझा गया सी SGPC यस यस, कहानी मैंने उनको पूरा क्या क्या शूट करने वाली हूँ पहले मैंने उनको एडवांस में दिया था कि ये शूट करने वाली हूँ, और जगह भी बताई थी कि यहाँ शूट करने वाली हूँ। फिर उन्होंने मुझे परमिशन दिया। पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप छोटा सा वीडियो कैमरा लेकर आओ और सरोवर जो है उधर खड़े होके कर लो। मैंने कहा कि नानक नाम जहाज पिक्चर की शूटिंग इतने छोटे कमरे से कैसे हो सकती है, इतना बड़ा नाम है। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि ये फिल्म है, ये कहानी है। तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया, परमिशन दिया, मेरे पास लेटर भी है। तो SGPC ने मुझे परमिशन दिया, तभी मैं वहाँ जा सकी पाजी, वरना मेरी क्या औकात थी वहाँ जाकर शूट करने की। ਅੱਛਾ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ? पाजी एक बात कहूँ, कैमरे के सामने बोल रही हूँ, शूटिंग के समय मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ नहीं ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं, मतलब प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप सी थी पाजी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी यहाँ शूट करने में। लेकिन पाजी सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा ना, हर बार ऐसा लगता था कि कोई है जो मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कल्याणी घबरा नहीं, ਅਸੀਂ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, और मेरा हाथ पकड़ के उस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालते थे। मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई पाजी कि मैं आपको बता नहीं सकती। शूटिंग रुक गई, मेरी गाड़ी का मेरी प्रॉपर्टी जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी का किडनैप कर लिया गया। किडनैप कर लिया गया? जी, ये भी हुआ मेरे साथ। इंसिडेंट साझा करना चाहूँगे की होया सी? मतलब जो इसके पहले प्रोडक्शन वाला जो था, उसने पता नहीं क्यों किसकी बातों में आकर या क्या था, जबकि मैंने पैसे देने में किसी की कोई एक पैसे रखे नहीं पाजी। मेरा शूट था आउटसाइड में, और उस दौरान हमारा सारा प्रॉपर्टी तो गाड़ी में रहता है ना पाजी, हम लोग तो ट्रैवल करते हैं अलग अलग लोकेशन पे और जाते हैं। और पाजी मेरा वो प्रोडक्शन का ट्रक ही मतलब बोलते हैं ना किडनैप करके चोरी करके लेकर चले गए, और बाकायदा मुझे ब्लैकमेल किया गया कि इतना पैसा दोगी तो आपकी गाड़ी आपकी शूटिंग पे पहुंचेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ पाजी, कोई आया जिसके आने से वो सब इतना स्मूथ हो गया, गाड़ी भी लोकेशन पे आ गई और शूटिंग भी हो गई। तो मुझे एहसास हुआ कि कोई ना कोई है मेरे ऊपर जो मुझे हर जगह से निकाल रहा है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद फिल्म कंप्लीट ना कर पाऊँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, फिल्म तो कंप्लीट होकर ही जाएगी पंजाब से। हले रिलीज़ तुसी 15 तरीक ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕਿ नहीं? बिल्कुल भी नहीं पाजी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी साफ सुथरी और दिल को छूने वाली पिक्चर है कि विवाद ना तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने विवाद का बिंदु भी नहीं रखा है इसमें, कोई विवाद नहीं उठा सकता। आपने ट्रेलर देखा पाजी? जी बिल्कुल। वो फिल्म है मेरी, वो पूरी फिल्म ऐसी ही है। उसका एक छोटा पार्ट मैंने आपको दिखाया, मेरी पूरी फिल्म ऐसी है, पूरी की पूरी फिल्म ऐसी है। आपको लगा कि इस फिल्म में कहीं विवाद होगा? एक वर्ड का विवाद नहीं है। डायलॉग्स भी ऐसे हैं ना पाजी कि एकदम स्मूथ घरेलू डायलॉग। फिल्म ये परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है पाजी। मैं सबको बोलूँगी कि पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखें और फिर आपको एहसास होगा कि परिवार क्या है और बाबा जी की मेहर जब होती है, मेहर क्या चीज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी पाजी कि परिवार नाल आएँ और इस फिल्म को देखें। और गुरु पूर्व पे रिलीज़ करने का मेरा मतलब ही यही था कि इससे बड़ा दिन और अच्छा दिन क्या हो सकता है। जिस दिन बाबा जी का जन्मदिन है उस दिन उनकी फिल्म आए सारे लोगों के सामने तो कितनी अच्छी बात होगी। हम गुरुद्वारे जाते हैं उस दिन माथा टेकने के लिए, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस दिन बाबा जी की फिल्म भी ज़रूर देखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल नानक नाम जहाज़ है ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।